so that your pen and your copies or paper with you, something. Stick, हाँ ठीक है, क्योंकि ये मैं जब आपसे रैंडमली बोल दूंगा ना कि आपको क्या करना है, भेजना है मेरे पास व्हाट्सएप इन वॉट एवर यू आर डूइंग, इन दैट केस यू विल बी कॉट रेड हैंडेड, तो दिस नॉट हैपन दैट कि आपसे मैंने बोला और आप अभी प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को सर लिखना है। चलो, कीप योर बुक्स एंड कॉपी विद यू। व्हाट वी हैव डन इन लास्ट क्लास? Law of definite proportions. Okay, law of definite proportion. We are going to little recap very quickly. Anyone who has missed the class, they will get back. The Justin is there. Coming. Okay. We are going to revise quickly, little bit. Quick recap. Whatever the things we had studied, is it? Just see that what we had started from this. What I can show you. Here we had discussed what is the mole actually. The mole में हमने बोला था कि mole is attributed to the 18th century Italian scientist Amedeo Avogadro. His full name was Lorenzo. Oh, this is the time to pronounce by someone else. Tamanna, can you pronounce this big name? Sir, what I have to pronounce? Yeah, it's written in red color. Can you read this? Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro de Quaregna e de Cerreto, ma'am. Wow, super, पूरे पिंड का नाम इनका था. His name is itself sufficient for whole entire pind, and that's why he has given one of the biggest known number. One of the biggest known number जो इन्होंने दिया हमें, वो कहीं ना कहीं इससे मैच करता है. तो ये थोड़ा सा ना, he has given this in very beginning, means nearly 18th century की बात करें तब उन्होंने ये बातें दे दी थी कि 1 mole is equal to the 6.022 into 10⁻23, but no one scientist was in his favor. Imagine it. कभी कभी हम क्या होता है ना, कोई चीज डिस्कवरी करते हैं and no one is in your favor. पूरा क्लासरूम बोलता है ना शशांक ने जो डिस्कवरी की एकदम गलत है, I am not going to believe it. हसनो हद साहिब ने भले कहीं से बातें बता दी, but you are not going to believe it. And he had faced lots of difficulty. आप सोच सकते हो, आपने एक रिसर्च किया, आपने अकाउंटिंग निकाली, आपने एक बड़ा सा बहुत अच्छा रिसर्च किया, and no one is going to believe on you, entire world. And he faced this situation in entire his life. Even he died, ये डिस्कवरी करने के बाद भी he died. Then after 100 years after his death, most of the scientists जब advanced discoveries, advanced हमारे पास instruments आ गए, स्पेक्ट्रोमीटर्स हमारे पास आ गए, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आ गई कि नंबर ऑफ एटम्स को आज हम काउंट कर पाते हैं. Then the scientists believe that whatever the Avogadro has said in his time, it was totally correct. But उनके टाइम में उन पे कोई बिलीव नहीं किया, उनको कोई रिकग्निशन भी नहीं मिला, बट एंड ही डाइड. तो ये कभी कभी होता है ना, कभी कभी हमारे काम को कोई रिकग्नाइज नहीं करता, बट दैट्स नॉट अ बिग इशू. यू हैव टू बी यू विल स्टिक टू योर ट्रूथनेस, यू हैव टू स्टिक विद योर जॉब. तो ये हमें क्या काम करना है, अच्छे से अपने काम को करो, रिकग्निशन तो बाद में मिल भी जाएगी. गॉट इट. नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्चुअली मोल? तो मोल के विषय में हमने बात किया था, एनी सब्सटेंस हैविंग नंबर ऑफ एंटिटीज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स equal to the number of atoms present in 12 gram of C12. ये definition standard definition है. This we all have to remember it. This we all have to remember it. Any substance is said to be 1 mole. कहीं पे भी 1 mole pen. If you have 1 mole pen, then you are having 6.022 into 10⁻23 pen. Is it? If you are having number of entire world की population को 1 mole मान लें, so that is equal to this number 6.022 into 10⁻23 number के equivalent हो जाएगी. Got it? तो दिस इज बेसिकली आप इसको इसके रेफरेंस में बोल सकते हो. देन देयर इज सम टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था, मोल की अपनी लैंग्वेज होती है. कभी कभी क्वेश्चन को इससे बोल रहे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम आयन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल. नो नीड टू वरी, दैट इज द एक्चुअली मोल. वो भी हमारा मोल ही रहता है. मोल इज वन ऑफ द वेरी बिग नंबर दैट वी ऑलरेडी नो. ये क्लिपिंग यहाँ से मिसिंग है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे. That was little story of the Avogadro.
अवोगाद्रो की स्टोरी थी। तो you see this law of conservation of mass we had already studied. It was given by Antonio Lavoisier. He is also considered as, he is also known as father of chemistry, because बहुत ही beginning में उन्होंने सारी बातें दी थी, and he said that during any physical or chemical change, mass remains conserved, mass neither created nor be destroyed. Mass remains conserved. Is it? Sum of the masses of the reactant is equal to sum of the masses of product. This was the very common definition given by him. And who will Jason, can you explain law of conservation of mass better? Jason, what does actually law of conservation of mass say? The mass of Yes. mass of the reactant is equal to the mass of the product. Very good, very good. And Ansuman Dadwal, can you explain better? Can you read what is the law of conservation of mass? Sir, mass of reactant is equals to mass of product. Means mass neither be created nor destroyed. And it was created by God. It is already created in verse. Is it? It remains conserved always. It remains conserved. और मैंने इसका एक्सेप्शन बताया था कि there is only two reactions. One is the basically reactions are nuclear fission and fusion. What we found that mass is not going to be conserved. And as per the modern theory, we can say that mass and energy of this universe remains conserved. And we are going to transform them only, we can change the mass into energy, but reverse we cannot still do, is it? Einstein ने ये काम नहीं किया. Einstein ने ये बात तो बता दी कि we can convert mass into the energy, but reverse is the part for us. हमें उसकी डिस्कवरी करनी है ना? तो आपको आगे चल के सोचना है कि how you can do this, कि जो हमें एनर्जी सनलाइट से मिल रही है क्या उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो? So you can save your sun, sun को वापस सेम साइज में ले जा सकते हैं. Let's go with this question. सर अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट किसी तरह हो सकती है तो लोग टेलीपोर्ट कर ही सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. हाँ जी, यही तो, this is the actually tough challenge, this is the tough challenge and we have to do this. ये आगे के लिए this is the part of research, there must be some universe where that our universe is very big, is it? In what the universe in which you used to live, that is the universe. वहाँ पे हम क्या देखते हैं बेटा? वहाँ पे हमें क्या मिलता है? That universe, your everything is going to decompose basically. आप कोई भी चीज देखोगे ना, everything has tendency to destroy. कुछ चीजें बनती हैं बिगड़ती जाता है. And finally your universe is expanding. ये जिस universe में आप रहते हो ना, ये हमेशा ना breakdown होता रहता है. आप see the galaxy, see the volcano eruption, see the tsunamis, so many problems are going in entire this universe. And all the stars are going to, mostly the stars are also going to disappear. Black holes are there. So there will be another universe where there is a creation of things, is it? वहाँ पे चीजें क्या होंगी, बन रही होंगी, because दोनों का तो combination possible है, is it? चीजें create भी होनी जरूरी है. अगर हमारी सारी चीजें disappear हो जाएंगी तो then it will be big issue, is it? Can you go with this numerical? Anyone can prove that how this reaction is going to follow the law of conservation of mass? See this. If you are going to take 10 gram of marble piece, is it? And if you are going to heat it strongly, it will give us 4.4 gram of carbon dioxide, and the residue is how much? CaO, that is going to 4.4 gram. 4.4 gram this carbon dioxide, and 5.6 gram is your calcium oxide. So how you can show that this law is, or this result is going to illustrate the law of conservation of mass? So to prove it, what we have to do? Sasan, what we have to do? You have to write. Mass of reactant should be equal to mass of product, तो 5.6 और 4.4 को add करना होगा. Very good. So we have to prove this, and 10 is equal to 4.4 plus 5.6, and you will get your answer, is it? See the solution. Total mass of the reactant must be equal to total mass of the product. Mass of the reactant is going to be nearly how many gram beta? It's a 10 gram. And mass of the products, one is 5.6 and that is 4.4, that is taken as nearly 10 gram. So there is no difference at all. It means it is a very accurate. And this law is going to prove us, this mass remains conserved, is it? Mass is going to remain conserved. ये हमने इसको कर लिया है. Next, this is the law that is known as law of definite proportion. Law of definite proportion, is it?
This was given by Joseph Proust. You can just identify. If you see the scientists, they were not fond of making the hairstyle. अब इनकी hairstyle को थोड़ा ध्यान से देखो. Hairstyle में आपको क्या कोई ऐसा कटिंग दिख रहा है जो हम लोग कराते हैं? पंजाब में आप देख लेना, है ना. समनप्रीत पंजाब के मुंडों को देखना, बच्चे हमारे ना एकदम बड़ी बड़ी स्टाइल बनाते हैं ना. अक्षेद जिसके भी अस्थि का ठीक है, ऐसे मैंने बोला कि if you go there, if you see the different kind of hairstyle, but if you see the scientist, even APJ Abdul Kalam, you will see that he was not having a time, not having time to go for haircut. Once you enter inside the laboratory, you have to be there for next 6 months. जैसे भी हमारा कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है ना, we are not allowed to go out for even 1 year. Same goes for some scientists also. तो वो लोग को इतना काम रहता है, मीन्स काम इन द सेंस they have to sit there, they have to work with the experiment, और वहाँ पे प्राइवेसी होती, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है, because no one else can enter in your lab and everything you have to do yourself. आपको खुद से सारी चीजें करनी रहती है, and then only you are going to get Nobel Prize. Nobel Prize, getting Nobel Prize is not easy, is it? It's a tough job, but उसके लिए हमें बहुत मेहनत की नीड है, और ये सारे साइंटिस्ट करते भी थे. तो that's why I told that, चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि जोसेफ प्राउस्ट की मैंने हेयर स्टाइल अभी देखे, मैंने just see this. What he said that in a particular compound, ratio of the mass of the element remains constant. Ratio of the mass of the element remains constant. It is not dependent upon that the process by which you are going to make it, is it? If you are going to make startup, if you are going to do a startup and you are going to open आप एक open करते हो, बेटा क्या करते हो? You are going to open the factory related with the production of water. Himalayan का water बना लो, Bisleri water बना लो, maybe any rain water, whatever kind of water you have, if it is 100% pure, it must be H2O, and the ratio of the masses of hydrogen and oxygen must be how much, बेटा? 1/8, 1/8. उसमें हम कोई change नहीं कर सकते. Got it? I hope this part was already done. Got it? So ये next, irrespective of the sources, pure sample of the water always contain 88.89 mass of oxygen and 11.11% of mass of oxygen. तो इसको आप prove भी कर सकते हो. Let us go and to do some little calculation, or we can see that how you can see this. See this calculation, is it? In this calculation, if we see that we have H2O, and we know that H2O, how we can make H2O, beta? 2H2 plus O2 is equal to how much? 2H2O. So here we can see that 2 mole of hydrogen always react with 1 mole of oxygen, 1 mole of oxygen to give 2 mole of water, 2 mole of water, is it? And 2 mole of hydrogen is how many gram, beta? 2 into 2. 2 into this 2, because there is 2 atoms. So it is going to be how many gram, beta? 4 gram. If you are having hydrogen 4 gram, your oxygen will be how many gram? 2 into 16. 2 into 16 is how many gram? 32 gram. Is it? And what about the water? Molar mass of water is 18. The 2 into 18 is how many gram, beta? That is going to be 36. So 4 1 ja 4. This is the 4 8 ja 32, and this is the 4 9 ja 36. So if we find the mass ratio of hydrogen and oxygen, mass of hydrogen is how many gram? If the molar mass of H2O is going to be how much? 18. Out of 18, how many gram hydrogen is there? If you see the hydrogen is how many gram, beta? 2 gram. Akshit, can you tell how many gram hydrogen is there and oxygen? Akshit, how much weight of the oxygen is here? Oxygen का weight कितना होगा बेटा? H2O में अगर hydrogen 18 ग्राम है, oxygen will be how many gram? Abhinanda? Yes, sir. How many gram oxygen is there, beta?
Sorry, sir. Please repeat again. How many gram oxygen is there? How many gram of oxygen is there in H2O? Sir, 16. Very good. 16 at Saib on all. Very good. Akshit, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा बेटा. Akshit, your mic is not working properly. Do it properly. Akshit, it's going to be 16. What happens? Mic is not working properly. 16 gram. तो बेटा अगर रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे? How to find the mass percentage of any element? Mass of the element divided by total mass of compound into 100. तो ये हाइड्रोजन का वेट कितना बेटा? 2 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूल का पूरा वेट कितना है? 18 ग्राम. तो ये जब परसेंटेज निकालना होता है तो मास ऑफ द वन एलिमेंट डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100. आप इसको बेटा किससे मल्टीप्लाई कर देना? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज आई हैव टू गोइंग टू कैलकुलेट परसेंटेज. इज इट? So this will be the answer. But it ये अगर आ गया. नेक्स्ट अगर मास ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? और ऑक्सीजन व्हाट वी हैव टू डू? 100 से माइनस कर लो. Either you can do minus from 100 because there is only two elements, hydrogen and oxygen, and altogether the total is how much? 100. So 100 minus mass of hydrogen, you will get the mass percentage of oxygen. That is going to be 80. It was how much? 88.89. Is it 88.89? I hope it's clear to everyone. In water, 1 gram of hydrogen always combined with 8 gram of oxygen. Or you can say in water percentage of hydrogen and oxygen, if the question is asking, then 11.11% is hydrogen, whereas 88.89% is there oxygen. What this law states? Anyone? This law tell us about that, law of constant composition. Composition of water remains constant, is it? Composition of water, we cannot change it. I hope it's clear to everyone. Option will be B, is it? What will be the option? Option is your B. So ये तो अभी बाद में करेंगे. Next, we have to study this law. That is the law of multiple proportion. Law of multiple proportion. The law of multiple proportion. I am going to explain you. I am going to explain you what is the actually law of multiple proportion. Is it? What is actually law of multiple proportion? See it. Suppose मेरे पास हमारे पास कितने बेटा? 2 elements हैं. We are going to discuss about the law of multiple proportion. Multiple proportion. Law of multiple proportion. You can see that this law was given by John Dalton, is it? It was given by John Dalton. What the Dalton said that कि suppose आपके पास बेटा क्या 2 compound है, A and B. Let there is a 2 compound, A for apple, B for banana, is it? And you are going to make a friendship, इनसे आपकी friendship करा दो इनकी. You will get a compound that is known as AB. Under case A, B is going to react with 2 molecule of 2 atom of B. You will get what? AB2. कितना बन जाएगा बेटा AB2? Third case, A is going to chemically combine with 3 atom of B. It can make AB3. What can make AB3? Like you can go for A plus 4B. Then what you will get? AB4. ये क्या बन जाएगा बेटा AB4? It may be possibility that if A is pentavalent, let the valency of A is 5 times, then it can make AB5. Okay, these are the different compound. And this is the element A and this is the element B. What is the condition? Keep mass of element A constant. Okay, keep mass of element A constant. Element A fixed or constant. Okay. Now what we are going to do? Take variable mass of element B. Different masses of B is going to chemically combine with fixed mass of A, is it? आप इसमें ध्यान से देखना, A का element constant है सारे के सारे में, is it? And different mass of B, what we are going to do?
different mass of B, different mass of B, mass of B, is it? Combined with fixed mass of A, fixed mass of A, is it? Fixed mass of A, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया fixed mass of A to produce different compound. हमें क्या मिलेगा बेटा? We will get different variety of compound, is it? To make different kind of compound, different compound, बहुत सारे compound आपको मिल गए यहाँ पे. Is it? 1/1 का रेशियो आपने किया, 1/2 रेशियो किया, 1/3 किया, 1/4 किया, 1/5. Now what the Dalton says, let us find the ratio. अब आपको क्या करना है बेटा? Now what he said that now find the ratio of element B, ratio of element B in, कहाँ पे निकालना है बेटा? AB, AB2, AB3, AB4, AB5. Got it? What will happen? Abhay batao beta. You can see that mass of A is same, that is going to cancel. What we will get? B 1 time hai yahan beta, B 2 time hai, B 3 time, B 4 time, B 5 time. The mass ratio of the element B in different compound must be simple multiple ratio, must be in, है ना? Simple multiple ratio. What is that ratio beta? 1 by 2 by 3 by, है ना, 4 by 5. यहाँ पे B 1 time है, यहाँ B is how many time beta? 2 time, is it? This is the B is how many time? 3 time. Next case B is how many time? 4 time. This is the 5 time. I'll have to note it quickly so that I will go and I will give you another real example, you know. Note कर लिया बेटा? Yes, sir. Okay, and you can see that this is the only possible when the A is going to show variable valency. ये जो बेटा तभी होता है जब A कैसा करता है? Variable valency show करता है. So I will show the another example. One, it is going to show na variable valency. One A is going to show variable valency. So for example, if I am going to take, you know, nitrogen, and we are going to do the reaction with oxygen, what you will get? You can have a compound N2O. You can have a compound, you know, N2O3. You can have a compound N2O4. You can have a compound beta N2O5. अगर मैं इसमें देखो ध्यान से, nitrogen has a variable valency, is it? In all cases, nitrogen का beta mass कितना है? 28 है. This is fixed. Nitrogen mass of the nitrogen kept at constant, is it? इसको fix कर दो. And what will be the weight of oxygen here? 16 gram. Here how many time beta? 16 into 3. Here how many times? 16 into 4. Here oxygen is how many time? 16 into 5, or maybe, you know, 5 oxygen. So now अगर हमें क्या करना हो बेटा, अगर हमें क्या करना हो, इनके रेशियो निकालने हो. What we are going to do? Find the ratio of mass of oxygen. इन सारे को डिवाइड कर दो. What you will observe that it is going to be divided, and here how much you are going to get? 1. So your ratio is going to be 1 by 3 by 4 by 5, is it? No need to worry. कभी कभी इसमें डाउट आता है. डाउट आएगा, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों एलिमेंट का मास ना कभी कभी एग्जैक्टली 28 यहाँ नहीं मिल पाता है. उसमें वो टेंशन लेने की काम नहीं है, आपका तब भी सही आंसर आएगा. आप ये कर लो, तब मैं आगे बताता हूँ. Got it?
यहाँ हमने क्या किया था बेटा, नाइट्रोजन के मास को फिक्स किया था। किसके मास को फिक्स किया था? नाइट्रोजन के मास को। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप ऑक्सीजन के मास को फिक्स करके भी रेशियो निकालोगे, सेम ही आएगा आपको, लेकिन यूनिटरी मेथड अच्छे से आना चाहिए। वंस यू नो द यूनिटरी मेथड यू कैन डू द रिवर्स आल्सो। आप बोलोगे कि N2O है और सपोज करो मेरे पास N2O3 है, व्हाट इट, इन दोनों केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट कितना है बेटा? 16 ग्राम। यहाँ पे इसका कितना है? 16 × 3 ग्राम। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हम ये बोलेंगे, आप इसको नोट करो, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्स कैसे किया जा सकता है। एवरीवन हैज नोटेड इट? अभी हो गया बेटा? अक्षित, सुशांक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। मैंने बोला कि कभी कभी हम यहाँ मैथ लगा लेते हैं। सम टाइम व्हाट हैपेंस, यू नो, थिंग्स विल नॉट गिवन एग्जैक्टली एज पर इन योर फेवर। तो आप वहाँ पे ना मैथ के एक्सपर्ट हो, मैथ आप लगा लेना। मैथ लगाने का ये मतलब होता है कि हम यूनिट मास ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? यूनिट मास। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे प्रूव करो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे पास एक कार्बन का रिएक्शन मैंने किससे कराया बेटा? मान लो ऑक्सीजन से कराया। सपोज आई गॉट व्हाट? CO। सेम रिएक्शन ऑक्सीजन कार्बन का मैंने ऑक्सीजन से कराया, आई विल गेट मे बी CO2। तो यहाँ ये देख के तो बड़ा आसान है बेटा बोलना कि कार्बन का मास फिक्स है। मैं इसको रिवर्स करके भी समझा सकता हूँ। कैसे समझाऊंगा? मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, कार्बन इज हाउ मेनी ग्राम हियर? 12 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इट? 12 ग्राम कार्बन combined with the oxygen is how many gram? 16 gram. 16 gram of oxygen atom, is it? 12 gram carbon है, ऑक्सीजन का कितना? 16. In this case what happens? It is having 12 gram carbon with how many gram of oxygen? ऑक्सीजन की बात अगर करेंगे तो here oxygen is how many? 32, is it? 32 ग्राम। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैथमेटिकली मैं इसको देखो रिवर्स, ये तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉलो होता है ना लॉ ऑफ मल्टीपल। रिवर्स में मैं करूंगा। पहले केस में ध्यान देना, इनके साथ CO, व्हाट आई विल राइट कि हम बोलेंगे 16 ग्राम। ध्यान से समझना बेटा, आई कैन राइट इन रिवर्स वे। आई कैन से दैट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइंड विद कार्बन इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम बेटा? दैट इज 12 ग्राम। आपको बेटा वेट निकालना होगा, पर ग्राम पे निकाल लो। आई कैन राइट 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद कार्बन हाउ मेनी ग्राम बेटा? दैट विल बी 12/16। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी हम रिवर्स कर सकते हैं मैथमेटिकली, 12/16। व्हाट इट? आप इसको नोट करके रख लेना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया कि मैन्युअली दो, देखो ये मास वेरिएबल है, लेकिन मैन्युअली मैंने ऑक्सीजन के मास को कितना ले लिया? यूनिट ले लिया। मैथ तो लगाई जा सकती है ना भाई, अभय नंदा, बात समझे ना। मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन का मास बेटा 16 के लिए इतना है, तो 1 के लिए तो 12/16 हो जाएगा। चलो ऐसे सिमिलरली गो फॉर CO2 आल्सो बेटा। CO2 में ध्यान से देखो, कार्बन इज देयर एंड ऑक्सीजन इज 2 टाइम। कार्बन 1 है तो ऑक्सीजन कितना है? 2 टाइम है। कार्बन के मास बेटा कितने? 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितने ग्राम है? बोलोगे सर 32 ग्राम है। कितना ग्राम बेटा? 32। अब इसको यूनिटरी मेथड लगाना। आपको बोल रहे हैं कि जब 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद किससे रिएक्ट करता है बेटा? रिएक्ट विद कार्बन इज हाउ मेनी ग्राम? यू विल से सर 12। वेरी गुड। तो बेटा अगर मैं यूनिट मास ले लूं तो मास फिक्स नहीं हो गया? अरे सर नहीं समझ में आया। अगर मैं इसका 1 ग्राम ले लूं तो ऑक्सीजन के मास को मैंने फिक्स किया कि नहीं दोनों में? देखो 1 gram of oxygen can react with carbon will be how many gram beta? तो that will be 12/32। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो निकालो, चेक करो क्या ये सिंपल रेशियो है कि नहीं। सब चेक करते हैं, चेक करो बेटा। तो चेक करोगे तो बोलोगे सर पहले रेशियो था 12/16, दैट वाज इन कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द मास ऑफ कार्बन। ये किसका वेट है बेटा? दिस इज द वेट ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना है? 12/16। दोनों को सिंप्लीफाई करो, 12/32। तो आप बोलोगे सर ये फ्रैक्शन है, तो ये आगे वाला क्या होगा? पलट जाएगा। 12/16 मल्टीप्लाई बाई 32/12, 12 से 12 उड़ गया, 16 बन जा 16, 16 2 जा 32। बात समझ में आ गई? 2/1।
we can prove it in reverse way, is it? ये ऐसे तो कोई भी प्रूव कर सकता है. दिख रहा था कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 टाइम, ये 2 टाइम. करेक्ट. हम इसको रिवर्स में भी प्रूव कर सकते हैं मैनुअली. कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के मास को कितना कंसिडर कर लेते हैं बेटा, यूनिट ग्राम. कितना कंसिडर कर लेंगे, यूनिट ग्राम ले लेते हैं. जब फार्मूले से हम डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इज इट, व्हेन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन डायरेक्टली. Got it? यहाँ हो गया बेटा. यहाँ तक डन कर लिया सबने. Everyone has done. Yes, sir. ये वाला लिख लो बस. ये तो मैंने समझाने के लिए किया. ये कैलकुलेशन आपकी चॉइस है, आप चाहो तो लिखना, अदरवाइज इसका कोई काम है नहीं. बस मैंने एक्सप्लेन किया कि आप टेक्निकली फंसना मत. कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए और हमसे क्या करे बेटा, वो पूछ ले कि मान लो दोनों के फार्मूले वेरिएबल है, फार्मूले यहाँ मैच कर रहे ना, आपके लिए आसान है, CO + CO2. लेकिन कभी कभी क्या होगा, फार्मूले मैच नहीं करेंगे. एक मैंने दोनों में नंबर ऑफ आइटम, तब मैथ लगा देना. यूनिट मास के लिए निकाल लेना, पर्टिकुलर मास के लिए निकाल लेना. 1 ग्राम के रेफरेंस में निकालोगे, आपका आंसर सही आएगा. आई होप यू गॉट इट. 1 ग्राम के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो मास ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया. दो मास कैन बी वेरिएबल, इज इट. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हम इसको कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इस पे देखो, स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे. इट्स विजिबल टू यू ऑल. व्हेन इफ देयर इज 2 एलिमेंट, 2 or more than 2 element, different element combined to form 2 or more than 2 different compound, then the different masses of one element which combined with लिख लिया बेटा इसको. 1, 2 or more than 2 element combined to form 2 or more than 2 different compound, then different masses of one element. B इसमें मत लिखना, B का काम नहीं. Got it? One element which combined with the fixed mass of another element, that must be a simple simple ratio, simple multiple ratio. Everyone has done. Here that they have taken the example of No, sir. carbon monoxide and carbon dioxide. Carbon monoxide as well as carbon dioxide. डन हो गया. डन इट. अब है हो गया बेटा सबका. अच्छेद. यस सर, हो गया. डेफिनेशन एक बार फिर से रीड कर लो. एनीवन रीड? 1, 2 or 2 different element combined to form 2 or more than 2 different kind of compound. Then the different masses of one element which combined with the fixed mass of another element, that always we are simple multiple ratio. Is it simple multiple ratio? When 2 or more than 2 element combined separately with the fixed mass of third element, and then
mass ratio of those two element must be a simple ratio, is it? Mass ratio दोनों का हमेशा simple करेगा. Next हमें ये वाला ला पढ़ना है. This was given by Benjamin Richer. You just see that it was the era of 17th to 18th century. 1762 you got date of birth, and 1807 में it was the last time he died. But ये law भी दिया था, but this law is not having that much practical. इसके बहुत हमारे लिए यूज नहीं है. इसको स्टेटमेंट आप लिख लेना पहले, इसको स्टेटमेंट बाद में लिखना, मैं इसको पहले समझा दे रहा हूँ. अभी पेन तो सर ये लो बुक में नहीं दिया. कोई बात नहीं. अरे वाह, लेजर पॉइंटर, लेजर कलर, एरो. चलो इसमें इसको देखना ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सोचना है. बहुत ही इजी है, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल आपको बहुत बड़ा यूज नहीं होने वाला. बट जैसे द रिएक्शन ट्रायंगल, एक रिएक्शन ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं. उस रिएक्शन ट्रायंगल में हमारे पास 3 दोस्त होंगे. ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप ट्रायंगल. एक जगह मैंने किसको बैठा दिया? अंशुमान को बैठा दिया. दूसरी तरफ किसको बैठा दिया? शशांक को बैठा दिया. तीसरी तरफ किसको बैठा दिया? बोलो. शशांक, सक्षम, सब देखिए. मान लो मैंने ध्रुव को बैठा दिया है, डी. ठीक है ना. ए जाता है, ए मीन अंशुमान जाता है, ध्रुव से बोलता है कि कैन यू डू फ्रेंडशिप विद मी? बोला व्हाई नॉट, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यू कैन बी माय फ्रेंड. बोलता है एडी बना दिया. क्या बना दिया बेटा? मैंने एडी बना दिया. फिर ये जाता है, सक्षम जाता है डी के पास. सक्षम बोलता है कि यार कैन यू डू कैन बी यू बी माय फ्रेंड? बोले व्हाई नॉट, यू कैन बी माय फ्रेंड. ये इससे भी बना लेता दोस्ती. एसडी हो गया. व्हाट इट. अब ध्यान से समझना, फ्रेंडशिप ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अगर अंशुमान का दोस्त ध्रुव है तो फिर सक्षम का भी दोस्त ध्रुव, ऐसा सोचना है. व्हाट इट. ये मतलब अब अंशुमान और इन दोनों की भी तो दोस्ती हो सकती है ना भाई. दे मस्ट बी अ म्यूचुअल फ्रेंड. ये तो फेसबुक का काम है. फेसबुक पे हम लोग यही करते हैं ना, है ना. हर साहिब का दोस्त ध्रुव है तो ध्रुव ने फ्रेंड रिक्वेस्ट मार दिया मेरे को, और जो काम हम लोग नहीं करते उसको फेसबुक खुद से कर लेता है. इज इट. ये इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप ट्रायंगल. है ये बड़े काम का नहीं है. तो फ्रेंडशिप ट्रायंगल आप देख सकते हो. अब यहाँ पे रियल में जाओ. जब एक ही दोस्ती आपने डी से कराई तो आपको मेक कंपाउंड बना जिसका क्या नाम है? एडी. यहाँ पे एक एडी बना. दिस इज एसडी. इज इट. नाउ इफ आई टेल दैट ध्रुव का वेट मैंने फिक्स कर दिया. ये कितना कर दिया बेटा? इसको वेट फिक्स कर दो. इसको मैंने फिक्स कर दिया. गॉट इट. और ए को मैंने बोला कि जाके डी से दोस्ती करके आओ. डी की तो क्वांटिटी फिक्स है, बदलेगी नहीं. डी इज क्वांटिटी इज ऑलवेज केप्ट कांस्टेंट. ऐसे में अगर मैं तुमसे बोलूं ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा फ्रेंडशिप है, ये तीसरी फ्रेंडशिप है, थर्ड फ्रेंडशिप में क्या होगा? दे विल बी म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ ईच अदर. ए एस के साथ जाएगा. इट कैन बी ए एस. लेट अस फाइंड स्टेप 1. अब हमें क्या करना है बेटा? स्टेप 1. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? फाइंड द मास रेशियो ऑफ, फाइंड द मास रेशियो ऑफ. अभी आप मत लिखो, समझ लो पहले. मास रेशियो ऑफ ए एंड एस, ए एंड एस इन एडी एंड एसडी, एडी एंड एसडी. थोड़ा ध्यान से देखना क्या आएगा बताओ. एडी और एसडी में मास ऑफ ए और एस निकालना है. तो आप लिखोगे सर इसको डिवाइड कर दो. लेट अस डिवाइड बाय एडी बाय एसडी. डी से डी कैंसिल हो गया. क्या आ गया बेटा? ए बाई एस आया कि नहीं आया? We can write in this way, is it? Let us go to now step 2. Step 2 यहाँ पे आना है. Step 2 में क्या करना है? Step 2 में थर्ड फ्रेंडशिप देखना, ये वाला रिएक्शन. Find the ratio of mass of A and B, A and sorry S in AS.
ए और एस में एक ए एस एक कंपाउंड है जिसमें ए और एस का रेशियो निकालो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ए बाई एस आ जाएगा। व्हाट इट, कुछ डाटा नहीं गिवन, ऐसे मान लो। तो मैंने ए एस ले लिया। अब ये कहते हैं कि नाउ थर्ड स्टेप, इन दोनों का रेशियो निकालो, दिस इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप कहता है लेट अस फाइंड द रेशियो इन बिटवीन दिस टू, इनके बीच में आपस में रेशियो निकालो। तो आपको मैथ में एक चीज सिखाया जाता है, याद करो कि यू हैव ए फ्रैक्शन पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस। अगर मैं ऐसे कर दूं बेटा तो क्या होता है, सामने वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। आई कैन राइट दिस एज ए पी बाई क्यू इंटू एस बाई आर, इज इट? ऐसे लिखा जा सकता है। सेम आई एम गोइंग टू डू हियर, ए बाई एस यहाँ पे बेटा, डिवाइडेड बाई बेटा किससे डिवाइड करेंगे, ए बाई एस से। ए बाई एस से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होना चाहिए, सामने वाला फ्रैक्शन पलटेगा। ए बाई एस डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे एस बाई आर, ए हो गया बेटा। ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हर साइड बताओ कैंसिल होगा कि नहीं? एस एन एस कैंसिल बेटा, ए से कैंसिल हो गया बेटा। ये क्या आया, 1/1, क्या आ गया बेटा, 1/1। ऐसा ये सिंपल है, ये सिंपल रेशियो आ गया। यार ये कौन सी मैथ थी, ये कौन सा केमिस्ट्री है ना? हर साइड सोचो, इस केमिस्ट्री की कोई काम है नहीं, बात समझना। ये खाली रेफरेंस के लिए पढ़ लेना है कि हमें जानकारी में रहे कि रिचर्ड भी एक साइंटिस्ट थे, उनकी आत्मा की शांति हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग उसको पढ़ लेंगे, गॉट इट। लेकिन इसका प्रैक्टिकली मैंने बोला कोई तुम्हें ये यूज नहीं देने वाला है। मैंने शुरुआत में बताया था कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आर नॉट हैव दैट मच यूज इन योर मूल चैप्टर, इज इट? उतने काम के नहीं है हम, लेकिन नंबर तो लेना है ना भाई, नंबर लेना है तो पढ़ लेना, गॉट इट। लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कोई न्यूमेरिकली एप्लीकेशन में हमें उतना काम नहीं आता। इसको रियल एग्जांपल में मैं लेके चल रहा हूँ। आपने यहाँ तक कर लिया, चलो लिखना है। ये क्या लिखेगा, अभय का नाम और ध्रुव का नाम लिखोगे, रियल एग्जांपल लो। नहीं आप ओके एबीसी सर। ट्रायंगल बना लो। सर फिर अगर 1:1 है तो इसे पता क्या लगाना सर? कुछ नहीं पता लगा, बस ये हुआ कि एक तो सामने वाले का रेशियो रेसिप्रोकेट हो गया, दूसरा ये सिंपल है। इट इज अगेन सिंपल रेशियो, नथिंग एल्स। दैट विल बी a simple whatever the value। ये कर लिया। तो यहाँ पे बोल रहे लेट देयर इज अ 3 फ्रेंड ए बी एंड सी, लेट देयर इज अ 3 एलिमेंट ए बी एंड सी, इज इट? One A and B separately make a reaction with the another element C to form a C and B C, like that। आप ऐसे बना के लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। स्टेटमेंट आप इसको लिख सकते हो, लेकिन मैंने बोला इसका प्रैक्टिकल कोई इतना बड़ा एस्पेक्ट इसका नहीं मिलेगा। It was given by Richer in the very beginning, मैंने आपको बता ही दिया that she was given 17th century की बात हो रही है, 1792। लिख लिया सबने? आप इसको एबीसी ट्रायंगल बना के एक्सप्लेन कर लेना, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप एबीसी बना लो, जो मर्जी बना लो। और साहिब वी कैन गो अहेड। यस सर। चलो तो इसका एक रियल एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ। लेट बेटा मेरे पास मान लो कि 3 दोस्त हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन, है। सल्फर, ये तीनों एक ट्रायंगल बना लो ऐसे करके। लेट योर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जाएगी, हाइड्रोजन से बोलेगी कैन यू बी माय फ्रेंड, मतलब व्हाई नॉट, आई मस्ट बी योर फ्रेंड, आई विल बी योर गुड फ्रेंड। और हाइड्रोजन का बेटा वेट हम कितना लेंगे, 2 ग्राम। सल्फर जाता है, इसके बाद हैंडसम हाइड्रोजन से बोलेगा ओ यू आर वेरी हैंडसम, आई वांट टू मेक योर फ्रेंडशिप विद यू, बोलो व्हाई नॉट, आई एम वेरी handsome, I am very versatile, I am very reactive, I can make your friend, I can do friendship with you even। ये रिएक्शन नंबर 1 है बेटा, ये रिएक्शन नंबर 2 है। इन बोथ द केसेस व्हाट हैपेंस, मास ऑफ द हाइड्रोजन इज केप्ट कांस्टेंट। इसको मैंने क्या किया बेटा, फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया बेटा, थर्ड एलिमेंट का मास देखना फिक्स है, हाइड्रोजन की कोई पार्शियलिटी नहीं है, जितना हाइड्रोजन ऊपर वाले से रिएक्शन करेगा उतना इधर से भी। तो इन दोनों में निकालो बेटा, ये रिएक्शन नंबर 1 है, दिस इज द रिएक्शन नंबर 1, दिस इज द रिएक्शन नंबर 2। तो स्टेप 1 क्या करते हैं हम लोग, फाइंड
फाइंड द, क्या निकालोगे बेटा, मास रेशियो ऑफ मास रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर in H2O and H2S. So oxygen is here 16 and the sulfur is how much beta here? 32. How much I am going to get the answer? 16 by 32. अक्षित कितना आएगा? Going to be 1 by 2. कितना आएगा बेटा? 1 by 2. अब ये कहता है दिस इज द थर्ड स्टेप. अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का दोस्त है, सल्फर भी हाइड्रोजन का दोस्त है, इनकी भी फ्रेंडशिप हो सकती है. ये मेरा बेटा मान लो बना लिया क्या, SO3 बना लिया, क्या बना लिया, SO3. कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है. तो इन थर्ड रिएक्शन में निकालो. नाउ फाइंड द मास रेशियो ऑफ सल्फर. हो गया. ऑक्सीजन एंड सल्फर यहाँ पे निकालना होगा. ऑक्सीजन एंड सल्फर इन SO3. Can anyone tell how much will be the answer here? सल्फर का मास कितना हुआ बेटा? 32 डिवाइड बाई 3 into 16. 3 into 16. 16 2 जो कितना आ गया बेटा? ये 2 by 3. How much is the answer here बेटा? This is 2 by 3. अब कहता है बेटा इन दोनों में रिलेशन निकालो. इन दोनों में रिलेशन निकालना ना हो तो रेशियो इन दोनों में कंपेयर करो. तो पहले क्या था? 1 by 2 था बेटा. इधर कितना है? 2 by 3. कितना है बेटा? 2 by 3. व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन? ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा. 1 by 2 इंटू हो जाएगा 3 by 2. वाह, कोई बात नहीं है. 1 by 2 इंटू 3 by 2. Got it? तो ये हो जाएगा कितना? 3 by 4. Again it is not a big, it is a simple ratio. लेकिन रेसिप्रोकल होने के बाद आता है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं. सिंपल रेशियो. गॉट इट? चलो डन कर लिया. Everyone has done. Quickly do fast. डन बेटा. कॉन्सेप्ट को समझना. इसका मैंने बोला कि कोई इस पे न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहता, कोई इसका प्रैक्टिकल कोई उतना हमें काम नहीं आएगा. हमारा जो मोल का फार्मूला है उस पर हमें पकड़ना है, उसी से हमें आगे चलना है. इज इट? डन बेटा. स्नूर हो गया. जसन, सुक्लीन. डन सर. ओके. अब मैं क्या कर चल रहा है सर. चलो फटाफट करो. देखो कौन स्पीड में चैंपियन होता है आज का. तो द चैंपियन ऑफ द डे इसमें पुनीत निकाला है. 154. इसको कोड में प्रॉब्लम होगा तो ले लेना आपस में. 1545815. डायरेक्ट आपको जाना है उधर क्रोम में जा करके quizzes.com डालो, ज्वाइन द गेम एंड बाय ऐड आपको करना है 51545815. सबने लॉगिन कर लिया बेटा? जल्दी जल्दी करो फटाफट, देखते कौन सबसे आगे बढ़ता है. कंपटीशन स्टार्ट. Ansuman is going very fast. Shivansh is also going very fast. Himanshi, Himani, Harnoor, Jeet. I can see that you all are going very fast. Very nice, very nice. Wow, very nice beta. Samanpreet also going very fast. Abhay, और जो आपको बीच में जो basically you will get some booster use करना, then only your performance will be far better. तेज करो. पायल, आस्तिक, जसन थोड़ा तेज चलो. Ansuman Dadwal is going very fast. Sir, I don't get link.
आप लिंक नहीं बेटा डायरेक्टली वहां खोलो ना, ये देखो ना मेरी स्क्रीन दिख रही है, quizzes.com दिख रहा है बेटा, quizzes.com देखो तो सामने स्क्रीन पे पूरा विजिबल है, quizzes.com खोलो और ज्वाइन विद द लिंक, ज्वाइन विद दिस कोड, वहां पे जाओ, ज्वाइन करना डायरेक्टली, प्ले विद द कोड, कोड डाल देना 1545815, स्क्रीन पे देखो दिख रहा है। वाह इट्स वेरी फास्ट, बहुत ही तेज भाग रहा है। Who is going to be champion of the day? Very nice. Very nice, very nice, very nice. Wow, super, super, super mind blowing. Sivan, Anmoldeep, Ansuman and Harsahib. पावर बूस्टर यूज करना, अगर आपको रैंक बनानी है तो बीच बीच में पावर बूस्टर मिलेगा। You have the question related with the little mole and significant figure and your previous topics जो आपने पढ़ा हुआ उस पे। Next quiz we will do, what we will go with that, you know, हम लोग और उसमें आगे जाएंगे। वाह सुपर, पावर बूस्टर लगा रहे हैं बच्चे हमारे, जिसकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों सही होगा उन लोगों को ना पावर बूस्टर मिल जाता है। Western going very fast, Astik also, you know, faster, Usman Dadwal and ठीक है, ये लोगों ने बहुत आगे खींचा है। समनप्रीत is doing fast, समनप्रीत जल्दी करो, हर्षनोट, सुजीत सिंह, कुछ गैस लगाने से थोड़ा पीछे भी जाओगे तुम लोग। Someone is doing guessing also. Tamanna is doing, you know, Tamanna is doing fast. सर कोड कहाँ है? कोड है देखो स्क्रीन पे 1545815। अपर बीट करना, मैं लिखता हूँ 154 154 5815। ओके। सर मेरा कंप्लीट हो गया। डन इसका मैं देख रहा हूँ किसका किसका हु द चैंपियन है ना। अभी तो मेरे सर पास मैं फर्स्ट पे हूँ अभी, वाह मुझे मेरे स्क्रीन पे। शशांक 13,370। वाह तुमने अपने इस सेक्शन को पीछे छोड़ दिया। तमन्ना इज आल्सो गोइंग वेरी फास्ट, जिसको पावर बूस्टर मिला होगा ना वो थोड़ा स्पीड में जाता है, तो पावर बूस्टर यूज जरूर करना। सर ये अपने आप ऑटोमेटिकली यूज रहते हैं या करना होता है? मतलब करना पड़ता है, करोगे तब आपके स्कोर बढ़ेंगे। तो मुझे मुझे तो शो ही नहीं हो रहा था, मुझे आया था कि आप यूज नहीं कर रहे हो, तब मैंने एक्टिवेट करा था। डूइंग वेरी फास्ट, यू नो, कंप्लीटिंग वेरी फास्ट। उनकी थोड़ा देखो, तमन्ना तुमसे आगे निकल गई, पावर बूस्टर लगाई लग रहा है। सर मुझे ऑप्शन ही नहीं शो हो रहा था। नहीं नहीं उसमें है, मतलब उसमें क्या होता है, बहुत जो लोग एक्सपर्ट है ना वो लोग देखते रहते हैं, बीच में आता है जो मतलब ज्यादा। जैसा आया था बस हाँ मैं एक्टिवेट कैसे करना है उसे? हाँ जी, बस उस पर क्लिक कर देना रहता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने से थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो तमन्ना इज चैंपियन टिल नाउ 13680। सत्संग सेकंड पे शशांक, थर्ड पे मेडिकल सेक्शन के रोनीति एंड देन शिवांश ठाकुर, देन साहिब। वाह फैंटास्टिक, वेरी नाइस।
ये सारे इंजीनियर्स का देखो स्कोर इज गोइंग वेरी हाई, इंजीनियरिंग सेक्शन मेडिकल से भी आगे। गुड, वेरी नाइस। शाम की भी जो क्लास होगी उसमें भी एक बार कुछ होगा, तो मस्ट बी प्रेजेंट, दैट विल बी एट 2:35 2:35 पे होगा, तो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल योर रिकैप, इज इट, एंड लेट्स डू हु विल बी द चैंपियन। उसमें दोनों क्लास का एक साथ कंपटीशन होगा। Himani is going with 1830. Harsimar Kaur, do fast. Payal, Saksham. Payal अभी तुम्हारा नहीं चला बेटा? Payal, Saksham is going. सुमित क्वेश्चन तो सारे सही से, बट सर पॉइंट क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर के हैं, कुछ मोल के होंगे, कुछ ऐसे कॉमन है जो टॉप फिर हो गया मुझे, सारे सही थे, मेरा टॉप पे है ही नहीं। नहीं तो Fourth उसको number ना, पे है। जैसे कि रवनीत है, जिसको जिसको पावर बूस्टर मिल जाता है ना बेटा, तो पावर बूस्टर मिलने से ना बढ़ जाता है। जैसे तमन्ना इज हैविंग हाईएस्ट, तो कहीं ना कहीं इसको पावर बूस्टर पक्का मिला है। शशांक को मिला था लेकिन पता नहीं इसने यूज किया नहीं किया। रवनीत को मिला था। जिसको मिलता है पावर बूस्टर वो थोड़ा स्पीड में जाता है। गुरविंदर, आस्तिक जोशी, अंशुमान ददवाल, तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम लोगों की कब है बेटा? अभी सर 12:45 पे। ओके ओके, देन कंप्लीट इट, कंप्लीट जिसका पेंडिंग है फट से कंप्लीट कर लो। Congratulations to you, Tamanna, Sasank, both at the top. Tamanna, are you listening me? Yes, sir. Okay, congratulations to you. Wow, very nice. इतना स्पीड कहाँ से Thank आया बेटा? आज पावर बूस्टर खा के आई थी क्या पूरा? लग रहा 2 लीटर पूरा दूध मिल्क पी थी, लग रहा है ना? सर एक मिला था पावर बूस्टर, वो यूज किया था। हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, एकदम सबसे टॉप पे पहुंच गई। मेडिकल सेक्शन से भी आ गए हो। क्वेश्चन सारे अच्छे ही थे, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। सुमित कुमार का भी चल रहा है देखो। कोई बाद वाला भी खेलने वाला ना स्पीड में बना सकता है, अगर आप दोबारा इसको प्ले करो ना, बस उसमें देखना नो रहता है सर, मैं दोबारा भी खेलने वाला पड़ा था, मैंने बंद कर दिया। हाँ, दोबारा आप खेल सकते हो, बस ये ध्यान देना स्पीड आपकी उतनी मेंटेन होनी चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। मैंने सर कर लिया है, मेरे 1200 कुछ पॉइंट है। सुमित का यस सर। तो सुमित दोबारा खेलना एक बार, जैसे कि आपको मालूम हो गया है ना, तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लो कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंट सर फिगर। सारे सही थे मेरे। तो पॉइंट तेरे घट कैसे गए? पता नहीं सर, वो मतलब 1200 कुछ 700 ऐसा कुछ क्या लिखा, मैं देखा ही नहीं। देख लो यहीं पे लिस्ट में होगा मेरा नाम। सुमित किस नाम से एंट्री किए थे तुम? सर सुमित कुमार ओनली। हाँ, अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं है बेटा, अभी इट्स गोइंग ऑन। सच में दोबारा से खेल लेते हैं फिर। कंप्लीट नहीं है अभी, दिखा रहा है 2880 पे दिखाया अभी। कंप्लीट करो उसको। सर वो नया वाला है। उसको कहाँ गया? दो दो होंगे। 12,590। ओ यार, एट द मतलब बहुत अच्छी स्कोर में हो, टॉप 4 पे हो तुम, दैट्स अ गुड थिंग। स्कोर तो तुम्हारा ठीक ही है फिर तो। सर पावर बूस्टर मिला था वहाँ पे, रिजल्ट किया अभी। Imani is there, Imani is playing, Imani, Harsimrat Kaur, Payal, Saksham, and Saksham में 2 है। आप दोबारा भी करोगे तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, एंड इन दैट केस यू कैन डू विद द लिटिल मोर एक्यूरेसी, अच्छे से कर सकते हो। लेट्स होप आई विल सी दिस स्कोर। अभी मैंने बंद नहीं किया, लेट्स गो हु इज गोइंग टू बी द टॉपर। मुझे नहीं लग रहा तमन्ना को कोई पीछे करने वाला अभी है फिलहाल ना। तमन्ना इज गोइंग टू बी टॉपर।
ये स्कोर तो मेरा दूसरा दिख रहा है। एक और मेरे पास यहाँ पे लाइव में है ना, लाइव वाले में भी मैंने देखा है पूरा, इसमें देखो तमन्ना इज गोइंग आउट, यू नो, दिख रहा है। तमन्ना 13680, शशांक 13770, मतलब 300 का नियरली डिफरेंस है। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे, इज इट, एंड गेट रेडी फॉर द लास्ट Thank you, पीरियड। sir. लास्ट पीरियड